कल मोदी जी ने कहा था मिडिल क्लास पर देवी लक्ष्मी की कृपा बरसे और निर्मला जी ने इसका इंतजाम भी कर दिया। जो महीने में 1 लाख तक कमाते हैं उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स में 25,000 से 1,10,000 तक बचेंगे। विद्वानों की राय है कि इस बार के बजट में कंज्यूमर के लिए संदेश है कि खर्च करो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ के खर्च के साथ इकोनॉमी की बुनियाद पर फोकस भी कायम है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.4% रखा गया है। विदेशी निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर AI तक बजट के जरिए पुश मिलेगा। खेती किसानों को लाभकारी रखने और देश की जरूरत के हिसाब से ढालने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। कैंसर की दवाएं, लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सस्ते किए गए हैं। कुल मिलाकर सीतारमन ने सबको खुश करने की कोशिश की है, लेकिन हाइलाइट्स तो वित्त मंत्री के इनकम टैक्स प्रपोजल ही रहे। The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. रिलीफ इनकम टैक्स के फ्रंट पे सब कह रहे थे कुछ होगा नहीं होगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चले। टैक्स के मोर्चे पे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके हो या फिर 20 से 30% वाले स्लैब में बढ़ोतरी करके बदलाव करके हो। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और सरकार ने बजट में फिस्कल डिसिप्लिन दिखाया है। वित्त मंत्री ने FY25 के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य 4.8 रखा है, जबकि FY26 के लिए टारगेट 4.4% रखा है। हालांकि कैपेक्स के मोर्चे पर सरकार धीमी पड़ती दिख रही है। सरकार ने इस साल के लिए कैपेक्स टारगेट घटा दिया है, जबकि FY26 के लिए इसमें मामूली बढ़ोतरी की गई है। The investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First,
for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. और वित्त मंत्री ने इस बार छोटे कारोबारियों को भी नवाजा है। इसमें एमएसएमईज के लिए क्रेडिट से जुड़ी योजनाएं, स्टार्टअप्स के लिए फंड और सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स शामिल हैं। और वित्त मंत्री ने क्लीन एनर्जी पर बड़े ऐलान किए हैं। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शामिल है, जिसके तहत 2047 तक 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और R&D को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए अभी 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। और सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ऐलान किया है। इसमें ईवी बैटरी, विंड टर्बाइन, क्लीन टेक, खिलौनों पर खास फोकस रहेगा। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन का ऐलान किया गया है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा। और कैंसर मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले वित्त वर्ष में देश भर में 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ेंगी। 36 जरूरी दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी और बाकी पर सिर्फ 5% ड्यूटी लगेगी। और वित्त मंत्री ने आज पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड में लोन सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. और युवाओं के लिए बजट में खास ऐलान किए गए हैं। इसमें मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाने और IIT के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है। Infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. बजट में बिहार के लिए बाहर देखने को मिली। इसी साल बिहार में चुनाव है और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि बिहार के लिए बजट में आधा दर्जन योजनाएं सुनने को मिली। इसमें एयरपोर्ट्स, IIT पटना का विस्तार, सिंचाई योजनाएं, मखाना, बोर्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग संस्था शामिल हैं। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. और प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट लोगों की झोली भरने वाला है और देश की तरक्की के लिए बड़ी नींव बजट में रखी गई है। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट
देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। चलिए, तो ये तो आपने सुना पीएम मोदी को, लेकिन यहाँ से सीधे रुख करते हैं। मेरी सहयोगी दीपाली नंदा मौजूद है दिल्ली में और उनके साथ इस समय बनी वैष्णव हैं। सुनते हैं क्या बातचीत हो रही है। कि जो बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। जो हम बजट से पहले लोगों से पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं टैक्स के मोर्चे पर, तो कोई कहता था कि 7 को 8 कर दिया जाए, 8 को 10 कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर सीधा 7 से 12 कर दिया गया है। 12 लाख तक नहीं कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो किस तरह से इस कदम को आप देखते हैं और कंजम्पशन बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी? ये एक ड्रीम बजट है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को। इतना कॉम्प्रिहेंसिव बजट, बहुत ही अच्छा बजट बना। देखिए आप, इन्वेस्टमेंट 11,20,000 करोड़, किसानों के लिए बहुत सारे प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाने के साधन, मिडिल क्लास के लिए 12 लाख। ओके, चलिए, तो ये आप सुन रहे थे बातचीत जो कि कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा बजट है और कंग्रेचुलेट करते हुए एफएम को और साथ ही वित्त मंत्री को। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बजट को शानदार बताया है। इनफैक्ट जो भी रिएक्शंस है वो हम सब आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन वापस रुक करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव से दीपाली नंदा बातचीत कर रही हैं। सुनते हैं क्या रिएक्शन है उनका इस बजट पर। उससे पहले एक ओवरऑल परसेप्शन जो अब इस बजट के बाद हमें बनता हुआ दिखाई देगा, उस पर बातचीत करते हैं। खासतौर पर जो सबसे बड़ी सौगात मिडिल क्लास को वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि 12 लाख तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं? और जो अब एक जरूरत थी कंजम्पशन बढ़ाने की, उस और ये बढ़ता हुआ कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के प्रति बहुत बड़ा कमिटमेंट रहा है। अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों में जितने भी बजट आए, हर एक बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ न कुछ रहा है हमेशा, और बड़ी सौगात रही। जैसे मेट्रो अगर चालू होती है उसका बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलता है, एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूशंस बनते हैं उसका बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलता है। और आज के इस बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर जीरो टैक्स का जो अनाउंसमेंट माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि इतनी बड़ी मिडिल क्लास को सौगात दी है आपने कि पूरे देश भर में खुशी की लहर है। आप देखिए, ये बजट एक ड्रीम बजट है। इस बजट में हर चीज को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिया गया है। जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम 11,20,000 करोड़ का, दैट इज इंटैक्ट, दैट इज स्टडी। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस है। थर्ड, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा फोकस है। फोर्थ, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब पे ध्यान दिया गया और साइमल्टेनियसली टैक्स की रिलीफ देना और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाना। इट्स एन अमेजिंग टास्क, इट्स अ फैबुलस बजट, अमेजिंग बजट। आई वुड से hats off to Honorable Finance Minister and Honorable Prime Minister for really bringing this kind of budget. ऑल राइट सर, रेलवे के हिसाब से देखें तो मुझे याद है जब पहला टर्म था मोदी सरकार का, तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हम रेलवे को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। और मैं देखती हुई आ रही हूं कि साल दर साल अच्छा एलोकेशन मिलता है। इस बारी की बात करें तो आप बताएं दर्शकों को कि कितना उसमें एनहांसमेंट हुआ है बजट एलोकेशन पे, और प्रायोरिटीज अब आपकी क्या रहेंगी उस बजट को इस्तेमाल करने में? 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि रेलवे देश की रीढ़ की हड्डी है, रेलवे देश की लाइफलाइन है। और जिस तरह से रेलवे में इन 10 वर्षों में काम हुआ है, वो मोमेंटम आज के बजट से प्रॉपरली मेंटेन होगा और बहुत ही अच्छा एक विस्तार हो रहा है। नई रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, नई तरह की ट्रेन आ रही है। सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। सेफ्टी पे करंट फाइनेंशियल ईयर में 1,14,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कमिंग फाइनेंशियल ईयर में यानी इस बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी का इन्वेस्टमेंट तय हुआ है। 200 नई वंदे भारत बनेगी, 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी, 50 नई नमो भारत ट्रेन बनेगी, 14,000 नए नॉन एसी कोचेस बनेंगे, 1,000 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनेंगे। बहुत ही बड़ा माइलस्टोन एक अचीव होगा इस साल, 1.6 बिलियन टन्स कार्गो कैरी करने का, जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। दुनिया में शायद 2 ही देश हैं जो इतना कार्गो कैरी करते हैं रेलवे से।
वो इस बार अचीव होगा और अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जाते जाते 3 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव होगा, प्लस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का माइलस्टोन अचीव होगा। तो ये बहुत बड़े माइलस्टोन्स है जो इस बजट के सर, जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो कवच से जुड़ा कोई बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट में किया गया है। खासतौर पर ये उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कवच 4.0 पर रेल मंत्रालय काम कर रहा है, तो कवच के लिए क्या कोई डेडिकेटेड फंड या एलोकेशन इस बजट में मिला है? ऑलरेडी सेफ्टी का जो 1,16,000 करोड़ रुपए का फंड है, उसमें से कवच के लिए 10,000 लोगों पे आज एक साथ काम चल रहा है। 15,000 के आसपास किलोमीटर्स के कवच की डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। जो बड़े हमसे काफी अमीर देशों ने अपने से आधा नेटवर्क होने पर भी जो 20 साल में काम किया, उतना उससे ज्यादा अचीवमेंट अगले 6 साल में करने वाले हैं। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के इंस्टॉलेशन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 12,000 लोगों को ट्रेन किया गया कवच की इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे मैसिव मिशन मोड पे काम चल रहा है। सर, वंदे भारत ट्रेन का आपने जिक्र किया कि 200 वंदे भारत ट्रेन और फ्लीट में ऐड ऑन की जाएंगी। हालांकि बजट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि कटरा से श्रीनगर कब तक शुरू होने जा रही है वंदे भारत, इस बारे में आप बताना चाहें। बहुत अच्छी उसकी टेस्टिंग हो गई है। कमिश्नर रेल सेफ्टी ने भी टेस्ट किया, लोड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, कई तरह के टेक्निकल मैटर्स हैं। कब तक शुरू होते हैं? तो बहुत जल्दी वो भी आपके सामने। और सर, अगर हम आईटी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का हमने जिक्र किया, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो कई सारे मोर्चे पर ड्यूटी कट्स का ऐलान किया गया है। तो किस तरह से आगे अब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा इस सेगमेंट में? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देश की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से हो रहा है। $115 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है, जिसमें सर्वर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में बहुत बन रही है। अब उसका कंपोनेंट इकोसिस्टम के लिए 3 बड़े रिफॉर्म की जरूरत थी। कस्टम्स में रैशनलाइजेशन, टैक्स का एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मैकेनिज्म होता है, उसमें क्लैरिटी लाना, प्लस वेयर हाउसिंग कंपोनेंट्स के इनपुट्स की जो जरूरत पड़ती है, उसका ये तीनों रिफॉर्म आज मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। आई थैंक हर फॉर दिस बिग अनाउंसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ काम भी चल रहा है कि किस तरह से कंपोनेंट इकोसिस्टम को एक होलिस्टिक वे में लाना है। तो बहुत अच्छा इससे प्रोग्रेस होगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डबल हो जाएगी और 2.5 मिलियन यानी 25 लाख का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डबल हो जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही कि अब हम जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं वो एआई ड्रिवन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, और इस पर तो जानकारी चाहेंगे ही, साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी जिस तरह से स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए खासतौर पर हम देख रहे हैं अब डीप टेक में कई सारे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड में और एड ऑन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टअप्स आज हमारी बहुत बड़ी ताकत है देश की, और ये प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप इंडिया के विजन से स्टार्ट हुआ था। और आज बहुत आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाने के लिए इतने लोग, इतने अच्छे, इतने स्मार्ट, इतने टैलेंटेड लोग तैयार हो गए हैं। जो लोग विदेश में जाके काम कर रहे थे, वो लोग भी भारत में आके आज काम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इस क्लियर पॉलिसी, एब्सोल्युटली क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उसके कारण बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस है। और एआई मिशन अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें रिसर्च का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि भविष्य में एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी विल प्ले अ मेजर रोल। पावर कंजम्पशन, कितना कम पावर कंजम्पशन में, कितने कम कंप्यूट पावर में आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, एक्यूरेट ला सकते हो, दैट एफिशिएंसी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। सो एंटरप्रेन्योर्स आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, एंड दिस इज द एआई मिशन विल बी फैसिलिटेटिंग दैट एंटायर इकोसिस्टम। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज से बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, यहाँ से ये तो आपने बातचीत सुनी रेलवे मिनिस्टर के साथ, लेकिन अब यहाँ से सीधे चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, जिनके साथ तुहिन कांत पांडे मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं तुहिन कांता पांडे से। सुनिए क्या कह रहे हैं। उठता था तो उसमें एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है कि उससे ऊपर जो भी वो इनकम उसकी आएगी उतनी ही इनकम टैक्स होगी। तो वो धीरे धीरे रिबेट उसका घटता जाएगा और लगभग 12,70,000 तक वो खत्म हो जाएगा। तो वो कभी भी उसको जर्क नहीं लगेगा। तो मार्जिनल रिलीफ जो है उसकी व्यवस्था लॉ में ही की गई है। लॉ में की गई। तो ये 12,70,000 जो बगैर डिडक्शन वाले हैं, डिडक्शन वाले को भी इसी रेशियो में बढ़ेगा? हाँ, उससे उनसे कम नहीं मिलेगा। जो रिबेट मिल रहा है 12 लाख को, उससे कम रिबेट नहीं मिलेगा। इसमें एक और सफाई आपसे चाहूंगा कि ये पूरी जो रियायत है या फिर जो टैक्स में फेरबदल है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम के लिए है। ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया? नहीं, ओल्ड टैक्स में कोई बदलाव नहीं है।
ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए, सिर्फ न्यू टैक्स के लिए। 20% से 30% के बीच में एक नया स्लैब जोड़ा गया 25% का। इससे कितने लोगों को आपको लगता है रिलीफ मिलेगा? और अभी जो लोग टैक्स फाइल करते हैं उनके रेशियो के हिसाब से देखें तो देखिए, हमारा जो स्लैब रेट स्ट्रक्चर चेंज करने का जो मेन वो है सुधार जो लाने का, एक तो आप देखेंगे कि पुराने की स्ट्रक्चर और हमारे नई स्ट्रक्चर में एक बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी हम लाए हैं। आपका देखिए 4 4 4 4 4 उसके हिसाब से हम गए, और इधर से हम 0 5 10 15 20 25 पहले जो उसमें था, एक तो जो स्लैब रेट में समानता नहीं थी, कहीं 2 का डिफरेंस था, कहीं 3 का डिफरेंस था, फिर कहीं 2 का डिफरेंस था। अभी ये 4 4 4 4 की सरलता की गई है। दूसरी जो उसमें भी ग्रेजुअलिज्म है, 5 10 वहां पे क्या था, आपका 15% से 20% से 30% जंप करता था, 25% का स्लैब नहीं था। तो इसलिए उसमें अचानक हाई एकदम से टैक्स आ जाता था, उसको हमने ग्रेजुअलिज्म किया। तो बेसिकली उसको जो हमने उसका जो जिसको युक्ति संगत बनाया है, उस रिफॉर्म में ये 25% की भी स्लैब ऐड की गई। मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊं, एक छोटा सा सवाल और भी रहेगा। टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है या फिर टैक्स इम्प्लीकेशन भी इससे काफी ज्यादा कम होगा? देखिए, इससे सबसे बड़ा तो ये है कि पहले हमारे बहुत सारे टीडीएस के रेट्स और बहुत सारी थ्रेशोल्ड है। कहीं 5,000 की थ्रेशोल्ड में टीडीएस लगाना है, कहीं 15,000 में लगाना है। तो हमने एक तो यूनिफॉर्म शुरू कर दिया, 10 20 30 50 मतलब वो। दूसरा हमने रेट्स में रैशनलाइजेशन किया है कि टीडीएस का रेट्स कहीं 1% लग रहा है, कहीं 2% लग रहा है, कहीं ज्यादा लग रहा है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे 25% था। तो उन सबको रैशनलाइज करते हुए हमने एक तो रेट को रैशनलाइज किया है और दूसरा स्लैब थ्रेशोल्ड को किया है, समांतर लाए हैं। उससे एक तो जो टीडीएस काटने वाले हैं, क्योंकि टीडीएस काटने वाले खाली इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होते, टीडीएस काटने वाले हम और आप भी होते हैं। कई जगह पे आपको टीडीएस काटना है तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए छोटी छोटी पेमेंट के लिए हमने टीडीएस को निकाल दिया ताकि वो उसमें उनको वो बर्डन नहीं आए। तो ये इससे क्या है कि हमारा एक्चुअली यदि हम देखें तो इनिशियली हमारा टैक्स रिडक्शन कम भी कम होगा, लेकिन वो एक सरलीकरण की ओर हम जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल इन डायरेक्ट टैक्स पे कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, वित्त मंत्री साहिबा ने, कि हम लोग न्यू टैक्स इनकम टैक्स के नए नियम लाएंगे। ये नए नियम क्या डायरेक्ट टैक्स कोड की जो बातचीत वर्षों पहले हुई थी, क्या उसी तर्ज पे होगा? क्या ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर देगा और कब तक लाएंगे? इनकम टैक्स बिल जो है हमारा नया आएगा, वो हमारे इनकम टैक्स 1961 का, जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हो गई हैं, जो 60 साल पुराना है, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बल्कि हो गया है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की, उसमें उसको समझने में दिक्कत है। इन सबको देखते हुए एक नया बिल लगाएगा, वो नई तरह से लिखा जाएगा, नई तरीके से लिखा गया है। जैसे आप वित्त मंत्री जी ने कहा कि लगभग आधा होगा, वो जो प्रेजेंट हमारा लॉ है प्रोविजन उसका आधा होगा, उसका लगभग आधा होगा, चैप्टर्स भी लगभग आधे होंगे, लिटिगेशन भी कम हो जाएगा। तो लिटिगेशन कम हो जाएगा, और जो उसकी जो भाषा है हमने सरल की है, वो उस तरह की भाषा आपको नहीं मिलेगी, ये बड़ी डायरेक्ट और सिंपल भाषा मिलेगी। तो आप भी समझ पाएंगे, दे पाएंगे आप? वो तो आप जब बिल देखेंगे आपको वो रिएक्शन का बिल मौका कब तक लागू करने की टारगेट है? वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इसी लेग में सेशन के 13 तारीख से पहले बिल पेश किया जाएगा। अप्रूवल होगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। उसके बाद तो कुछ